A very good morning to all of you. Well, students, we are dealing with our third topic, that is elections and representations. And in that context, today let's continue with the topic with proportional representation. Now let's compare this to how elections take place in Israel that follows a very different system of elections. In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes. Now let's see, in it is in box here. This is they are for India, and will be looking further here, this one in Israel. This is the way through which Israel government is being introduced, is being formed. Okay, here the number seats only. Each and every party has been given seats as the proportion they get the votes. Okay, now let's see. In the PR system, there could be two variations. दो variations हो सकती हैं. In some countries like Israel or Netherlands, the entire country is treated as one constituency and seats are allocated to each party according to its share of votes in the national elections. हर पार्टी को seats allot कर दी जाती है उनके proportion के हिसाब से, votes के proportion के हिसाब से. The other method is when the party is divided into several multi-member. लेकिन दूसरा मेथड जहाँ पर पार्टी पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एज इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल में. ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स. हर पार्टी को यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. इन बोथ दीज वेरिएशंस, voters exercise their preference for a party and not for a candidate. The seats in constituency are distributed on the basis of votes polled by the party. Thus, representatives from a constituency would and do belong to different parties. इसलिए वो हर अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं होते. इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड PR सिस्टम. हमने इंडिया में कौन सा PR सिस्टम किया कि जो कॉलिजन पार्टी सिस्टम होता है, वो कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इज़राइल. लेट्स सी फॉर इज़राइल. इज़राइल follows proportional representation system of elections. Election to the legislature, this is the name of legislature in Israel, takes place every 4 years. That's why when we write the features of democracy, we never write that democracy means elections are held after every 5 years. No, we always write elections are held after a regular interval, because in most of the countries the duration, or I mean to say tenure of Lok Sabha is different, as it is 4 years in Israel. Every party declares a list of its candidate, but voters vote for the party and not for the candidate. A party gets seats in the legislature in proportion to the votes polled by it, and this allows even smaller parties, जिससे छोटी जो parties हैं, with very small support base to get representation in the legislature. क्योंकि वहाँ पर पार्टी को वोट मिलता है पार्टी के हिसाब से, तो चाहे छोटी पार्टीज़ हैं, चाहे उनको कम वोट्स मिले हैं, उनको भी legislature में अपना representation देने का अधिकार है. A party must get a minimum of 1.5% votes in order to be eligible to get seats in the legislature, and this often leads to a multi-party coalition government. Now, let's move further. The following table, this is the table, shows the result of 2003 elections to the Knesset. Based on this, you can find out what percentage of votes various parties they got in these elections. You please go through this. Now let's move further. According to that, on a limited scale for indirect elections. Now the constitution prescribed
अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस ऑफ द PR सिस्टम, ये 2 सिस्टम हमने अभी तक पढ़े हैं। तीसरा क्या था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बड़ा, फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शंस टू द राज्यसभा एंड विधान परिषद। Now you see, this is the comparison of FPTP, means first post and then first past then post, and the second is PR system means. Now let us see, the country is divided into small geographical units called constituencies or district. What we are doing here in PR system, large geographical area are demarcated as constituencies, सिर्फ डिमार्केट किया जाता है। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज इट इज़ इन इज़राइल। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, बट हियर in more than one representative may be elected from one constituency and voters vote for the party. Now voters vote for a candidate. हमारे यहाँ पर normally candidate के लिए vote होता है, but here voters vote for the party. A party may get more seats than votes in the legislature. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि seats मतलब votes के number of votes कम हो सकते हैं लेकिन seats ज़्यादा होती है। यहाँ पर every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets. Now next is candidate who wins the election may not get majority. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है लेकिन मेजोरिटी में नहीं आता क्योंकि वो उसकी पूरी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन, यहाँ पर तो वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है तो उसको मीन्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया UK और इंडिया का, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था हमने इज़राइल और नीदरलैंड्स का। नाउ हाउ डज PR वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शन, लेकिन PR जो सिस्टम है ये राज्यसभा के इलेक्शन में कैसे वर्क करता है। द थर्ड वेरिएंट ऑफ PR, द सिंगल ट्रांसफरेबल, यहाँ इसको मतलब है वोट सिस्टम होता है ये, जहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है STV, इज़ फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन, उसके लिए अलग होता है। एवरी स्टेट हैज़ ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। अभी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो अगर मैं बात करती हूँ यूपी की, यूपी तो बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो वहाँ से तो राज्यसभा की सीट्स बहुत सारी जा सकती हैं, तो इसलिए उसकी तो मेजॉरिटी कहाँ लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और सब किसी को अलग अलग वोटिंग सिस्टम के हिसाब से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। एवरी स्टेट के पास स्पेसिफिक कोटा दिया जाता है सीट्स का। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, हम लोगों के मतलब पीपल के द्वारा नहीं है, सिटीजन से नहीं है, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है मीन्स MLAs, वो इसके लिए वोटिंग करते हैं। द वोटर्स आर द MLAs इन दैट स्टेट। एवरी वोटर इज़ रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। हर वोटर को जो MLAs होते हैं उनको यहाँ पर रैंक देना होता है अपने चॉइस के कैंडिडेट को। टू बी डिक्लेयर्ड द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, अगर मतलब विच इज़ डिटरमाइंड बाय ए फॉर्मूला, एक फार्मूला ये नीचे दिया गया है, टोटल वोट्स पोल्ड, कितनी वोट्स पोल्ड हुई थी, एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, और कितने इलेक्टेड हुए हैं प्लस उसमें 1 कर दें और उसके बाद फिर से ओवरऑल +1 कर दें। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से समझ आ जाएगा, इफ़ 4 राज्यसभा मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड बाय द 200 MLAs इन राजस्थान में मान लो 200 MLAs हैं और 4 राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना उन्हें। द विनर वुड रिक्वायर, तो विनर को कितनी चाहिएगी, 200 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे और +1 मीन्स हमें क्या करेंगे, इसको 41 उसको कम से कम वोट्स चाहिए ही चाहिए। When the voters are counted, जब वोटर्स को हम काउंट करेंगे, it is done on the basis of first preference votes secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference votes. If after the counting, अगर हम काउंटिंग के बाद जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स थे, अगर उनको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, फॉल टू फुलफिल द कोटा द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द लोएस्ट वोट्स ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वहाँ पर किसको चांस मिल जाता है कि जिन्होंने कम वोट लिए थे लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में आए थे, इज़ एलिमिनेटेड एंड हिज और हर वोट्स आर ट्रांसफर्ड, जिसको जो प्रेफर तो किए गए थे लेकिन उनको कम वोट्स मिले थे तो उनकी वोट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू दोज हु आर मैंशनड एट सेकंड प्रेफरेंस, जिनको हमने सेकंड प्रेफरेंस में मेंशन किया था लेकिन
उनको उससे ज़्यादा वोट्स मिल गई थी ऑन दोज बैलेट पेपर्स. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. नाउ व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम? इंडिया ने ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस. ये आंसर बहुत मुश्किल नहीं है. इफ़ यू हैव केयरफुली रेड द बॉक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शंस यू वुड हैव नोटिस्ड, तो पहले ही तुम्हें नोटिस हो जाएगा दैट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच में वर्क इन अ स्मॉल कंट्री बट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री लाइक इंडिया. So the reason for the popularity and success of FPTP system is its simplicity. क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है. द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड, जिनको तो बिल्कुल इसकी स्पेशल मतलब उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल आम ऑर्डनरी सिटीजन भी जान लेता है, नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस. सो देर इज़ ऑल्सो अ क्लियर चॉइस, एक बिल्कुल क्लियर चॉइस दे दी जाती है, प्रेजेंटेड की जाती है वोटर्स के सामने एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. वोटर्स हैव टू, सभी वोटर्स को सिंप्लीफाई करना, सिंपली एंडोर्स करना, एक कैंडिडेट को चुनना है फॉर या और अ पार्टी को वाइल वोटिंग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर और एक्चुअल पॉलिटिक्स. वोटर्स में ईदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द टू. दोनों को, कभी कभी पार्टी को देख के देते, कभी वोटर्स को ना कैंडिडेट को देख, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोटर्स भी ना कैंडिडेट भी अच्छा और पार्टी भी अच्छा, तो दोनों को देख के ही वोट डालते हैं. द FPTP सिस्टम ऑफर्स, ये ऑफर्स करता है वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स. इन अदर इलेक्टोरल सिस्टम स्पेशली PR सिस्टम वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज़ अ पार्टी. लेकिन जब हमने PR सिस्टम की बात की थी वहाँ पर कैंडिडेट की बात नहीं थी, सिर्फ पार्टी को चूज़ करने की बात थी. एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट. एज अ रिजल्ट देर इज़ नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट. इसलिए क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल किसी एरिया से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो कि अपने एरिया को रिप्रेजेंट करे और उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो. सो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक द FPTP द वोटर्स नो. लेकिन जो हमारा सिस्टम है जिसमें वोटर्स को पता होता है कि उनका कौन रिप्रेजेंटेटिव है और वो उसी को ही अपने काम के लिए अकाउंटेबल ही मानते हैं. नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेल्ट दैट, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात पहले ही महसूस कर ली थी दैट PR बेस्ड इलेक्शंस में नॉट बी सुटेबल. हमारे जैसे कंट्री के लिए PR बेस्ड सिस्टम बिल्कुल सुटेबल नहीं होगा एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए. वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो इसलिए हम इसके बारे में, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और हमारी एग्जीक्यूटिव के बारे में भी. तो यू विल नोटिस दैट द PR सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस. तो हम उसमें तब पता लगेगा हमें कि PR सिस्टम एक क्लियर मेजोरिटी को प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो लेजिस्लेचर में जो सीट्स हैं वुड बी डिवाइडेड, तो वो डिवाइड कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स. इसलिए तो जो FPTP सिस्टम है वही बहुत बढ़िया हमें जनरली हमें लार्जेस्ट पार्टी देता है और कोलिजन पार्टी भी बनाता है, क्योंकि उसको भी कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, क्योंकि स्मॉलर पार्टीज़ को भी बेनिफिट मिलता है इससे, मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ. दस दिस सिस्टम मेक्स इट्स पॉसिबल. इसलिए इस सिस्टम से ही ये बिल्कुल पॉसिबल है जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कि वो स्मूथली फंक्शन कर सके और इफ़ेक्टिवली फैसिलिटेट कर सके एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए. फाइनली द FPTP सिस्टम, और अंत में जो हमारा FPTP सिस्टम है ये एनकरेज करता है वोटर्स को फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कि वो इकट्ठे हो जाएं एंड किसी भी इलेक्शंस को जितवाने के लिए अपनी लोकेलिटी में. सो इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ए PR सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी. तो जो हमारे यहाँ पर जो हमने एक PR सिस्टम जो ले रखा है FPTP सिस्टम, वो हर कम्युनिटी को एनकरेज करता है टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी. And this may also have been at the back of the mind of our constitution makers. Okay, so this is all for the day. Thank you and have a nice day.